السلام علیکم. سب سے پہلے میں اس ایوان کا موشن، اس ایوان کی رائے میں ذاتی دفاع کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے، ذاتی دفاع کے لیے اسلحہ رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے، جس میں ہماری نیت تھی عوام کا جان و مال و عزت و آبرو کا تحفظ. سب سے پہلے ہمارے فرسٹ اسپیکر آتے ہیں اور وہ اپنے آ کے کراچی کے مسئلے مسائل پر بات کرنی شروع کر دیتے ہیں. موصوف تمہیں حال سناؤں کراچی کا، اس شہر کی اس بربادی کا؟ میں تمہیں بتاتا ہوں. یہاں پہ بات ہو رہی ہے اسلحے کی، اور ہم نے یہاں پہ ڈیفائن کر دیا ہے کہ جان مال عزت و آبرو. تمہارے نزدیک بلال کا قتل صرف قتل ہے؟ صرف بلال کا قتل ہوا؟ تمہارے نزدیک اگر اسامہ کا قتل ہے تو وہ صرف قتل ہے؟ تمہارے نزدیک 58 لوگوں کی جان صرف ہے؟ صرف چھوٹی سی چیز ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں بھائی، یہ میرا شہر ہے. اس شہر میں بہت درد دیکھے ہیں. اس شہر کو صرف اس کی جانوں کو صرف مت کہو. میں تمہیں بتاتا ہوں. اس کے بعد یہ بول رہے ہیں، پھر آتے ہیں یہ بات کر کے جاتے ہیں لیاری کی. قانون کی بات کرتے ہو نا، لیاری عزیر بلوچ جانتے ہو؟ کیسز ختم ہو رہے اس میں سے. کون انصاف دے گا اس چیز کا؟ کون انصاف دے گا اس چیز کا؟ میں تمہیں بتاتا ہوں عزیر بلوچ میں سے کیسز کیوں ختم ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں کا قانون اس چیز کی نہیں کرتا، اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ ہم ان چیزوں کو انصاف دے سکیں. یہاں کی عدالتیں مرنے کے بعد کوئی فیصلہ سناتی ہیں، اس کے لیے بیٹھے رہے کہ بھائی کوئی آئے گا مجھے مار کے چلا جائے گا، میں انتظار کروں گا، میرے بچے انتظار کریں گے. اس کے بعد میں آپ کو انہوں نے ایک ایل او اے پیش کیا کہ جو ہے اسلحہ اور امن. بھائی اسلحہ ہے تو بھی تو امن ہے. آج شہر کراچی میں امن ہے؟ آج شہر کراچی میں امن ہے؟ آج اس شہر میں امن ہے تو میں اسی اسلحے کی تو بات کرنا ہے کہ بھائی لائسنس یافتہ اسلحہ دو. یہ نہیں بول رہے کہ جانی بندہ ٹکرانے اسلحہ دو، نہیں، لائسنس یافتہ دو، لائسنس یافتہ اسلحہ دو، تاکہ ہم جو ہے یہاں پہ آ کے اپنی جان کی حفاظت کر سکیں، اپنی جان کو سیکیور کر سکیں. کوئی آئے میرے سے اگر کوئی چیز مانگے، اگر میں اس کو آ کر دے دوں کہ بھائی یہ لو تمہارے تایا ابو کی چیز تھی، کیوں دے دیں بھائی؟ نہیں دیں گے، ہماری چیز ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور ہاں، جہاں تک بات رہی کہ جو ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ریٹ برقرار نہیں رکھ سکتے، بھائی جان اس شہر میں رینجرز کی بہت دفعہ توسیع ہوئی ہے. اس شہر میں رینجرز کو بہت دفعہ اختیارات دیے گئے ہیں. آج یہ شہر امن کا گہوارہ ہے، آج یہ شہر امن کا قائم ہے. اور اگر رینجر سے پوچھو کہ بھائی اس شہر کے اندر روز لوگ مر رہے ہیں تو وہ کیا بولتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. کیوں بھائی؟ میں اس قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بات کروں گا، میں اس قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بولوں گا کہ بھائی مجھے انصاف دو. نہیں سر، ہم لائسنس یافتہ اسلحہ رکھیں گے اور ہم اپنی جان کی حفاظت خود کریں گے. ایک اور چیز جس کے اوپر میرے موضوع اپنے کچھ سوالوں کا جوابات دینا بھول رہے جو ہم نے کھڑے کیے تھے، آئے جذباتی تقریر کی چل دیے. بھائی سولوشن تو دو، سولوشن دے گا، سولوشن بتا کے گئے میرے پاس ہے سولوشن. اسلحہ دے دو ہم دیکھ لیں گے، اسلحہ دے دو ہم دیکھ لیں گے. صحیح ہے، ہم اس چیز کے اوپر بات کریں گے. ہمارے پاس لائسنس یافتہ ہوگا، اسلحہ ہوگا، ہم اپنی رکھوالی خود کریں گے. بھائی آپ کے پاس بھی، آپ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس بھی تو اسلحہ ہے. کیا کر لیا؟ میرے شہر کے لوگ تو روز ہی مر رہے ہیں نا، میرا شہر تو ویسے ہی کھا رہا ہے نا مار، میرا شہر تو ویسے ہی مار کھا رہا ہے. اور یہاں پہ بات کرنے بھائی اگر اس شہر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کسی کے اوپر بات کری ہے تو وہ اس شہر کے لوگوں کے اوپر ہی بات کری ہے، اس شہر کی جماعتوں کے اوپر ہی پابندی لگائی ہے، اس شہر کی آواز کے اوپر پابندی لگائی ہے. یہ کوئی بات نہیں ہو رہی کہ آپ جو ہے یہاں پہ آ کے بات کریں کہ جو ہے اس شہر سے عزیر بلوچ اور لیاری. ایک اور چیز، اور میرے گورنمنٹ کی طرف سے فرسٹ انہوں نے بتایا کہ جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیز بین فیلڈ. تو واقعی میں جائیں فیلڈ، بالکل فیلڈ. ہمارے پاس لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے وہ مکمل ناکام ہو چکی ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج میرا شہر جو ہے مر نہیں رہا ہوتا، آج میرا شہر جو ہے اس حد تک نہیں پہنچ چکا ہوتا کہ جہاں پہ کرائم ریٹ اتنا زیادہ اونچا ہو جائے. نہیں سر، میرے شہر کی لا انفورسمنٹ ایجنسی فیل ہو چکی ہے. اور اسی کا میں جواب دینے آیا ہوں کہ آپ ہمیں لائسنس یافتہ اسلحہ دیں اور ہم اپنی سیکورٹی کی حفاظت کریں گے. اور جب ہمارے پاس اسلحہ ہوگا تو ہم اس قابل ہوں گے کہ، اور آبویس سی بات ہے جب آپ سب کے پاس ایک چیز اسلحہ ہوگا تو جرائم کا ریٹ ویسے ہی کم ہوگا، لوگ ایک دوسرے کی طرف آئیں گے ہی نہیں. اور ہاں، جہاں تک بات رہی آپ بولنے کہ جو ہے آپس میں لوگ ایک دوسرے کو مار دیں گے، سر مار
साथ। मेरे शहर के लोग ऐसे नहीं है, एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। और आज अगर देखा गया है, आज अगर देखा गया है कि जो कौन लोग होते हैं वो मेरे शहर के लोग नहीं होते, वो मेरे शहर के लोग नहीं होते जो पकड़े जाते हैं, वो बाहर से आते हैं, वो बाहर के लोग होते हैं जो इस चीज के ऊपर बात करते हैं। और आप इनकी तरफ से एक बात आती है मेरी ऑपोजिशन टीम की तरफ से कि हम जो है कराची वालों को, आप कराची वाले आपस में एक दूसरे को मारेंगे, क्रिमिनल्स को मारेंगे, कराची वालों को नहीं मारेंगे। हम क्रिमिनल्स की बात कर रहे हैं, कराची वालों की बात नहीं कर रहे, हम क्रिमिनल्स की बात कर रहे हैं। सेकंड चीज हमारी तरफ से एलओए पेश किया गया कि जो है कराची, द पेन ऑफ कराची फेस बाय कराची। कराची का दर्द कराची वाला ही समझ सकता है जनाब सदर, कोई और नहीं समझ सकता। यहाँ पे जो तकर्रुरियां हो रही है वो बाहर के लोगों की हो रही है, मेरे शहर की नहीं हो रही। मेरा शहर वैसे ही पड़ा हुआ है, हमारे पास नहीं है कुछ भी, हमारे पास वो कानून नाफिज करने वाले इदारों में वो चीज नहीं है। कराची के बाहर के लोग आते हैं जो इस दर्द को नहीं समझ सकते, जो इस दर्द की नहीं इस्लाह करते। कराची कैन टेक स्विफ्ट एक्शन। जी हाँ जनाब सदर, हमारी तरफ से तीसरा एलओए पेश किया गया, कराची कैन टेक, पीपल कैन टेक स्विफ्ट एक्शन। जनाब सदर, वो अदालतें जहाँ पे जो आके हमें मार दे जाती हैं, जो हमें मार देती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि वो हमें क्यों मार के गए, तो हम इस चीज का कैसे वो करेंगे, हमें कौन इंसाफ देगा। मैं उन अदालतों के पास जाऊंगा जो मुझे बोलती है कल आना, परसों आना, अगले दिन पेशी है, इस दिन बात करेंगे। नहीं सर, मैं अपने मरने के बाद अपने इंसाफ के लिए कबर के अंदर वो करूंगा इंतजार कि मुझे अब इंसाफ मिलेगा। आज उसामा को मारा गया तो उसामा कबर के अंदर बात करेगा। यहाँ पे आज इस शहर के अंदर इंसान की जान की कीमत सिर्फ एक मोबाइल फोन रही है। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि जो है इन लोगों ने, इनकी तरफ से हमारे कोई भी नहीं आया और हम इस चीज के ऊपर आए हैं कि जो है असलहा होना चाहिए राइफल के अंदर, इसलिए हम आए। शुक्रिया। Now I would like to call upon stage the last speaker from the mechanical team. सदर आली वकार, इनके सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर आते हैं जो कि ये बात कहते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट है बीइंग फेल। जनाब सदर, हम लोगों ने भी यही बात की कि अगर लॉ एनफोर्समेंट फेल हो गया है तो आप ये नहीं कर सकते कि आप हर एक फर्द के हाथ में असला दे दें कि हर एक फर्द आए और हमारे पास जो है वो लड़ाई करे। जनाब सदर, अगर हमारे पास अवाम के हाथ में असला देने का मतलब है कि अवाम के हाथ में कानून देना। जनाब सदर, जब अवाम के हाथ में कानून आएगा तो मुख्तलिफ फसादात हमारे सामने दरपेश आएंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा सुन्नी शिया के फसादात, लियारी के इलाके में मुख्तलिफ गिरोह के फसादात, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के फसादात। तो जनाब सदर, ये सब क्यों हुआ? जब आपने अपनी अवाम के हाथ में असला दे दिया। तो मैं इनकी इस बात से मुकम्मल रिबटल करता हूँ जो कि ये कहते हैं कि अवाम को असला देना चाहिए। हम इस बात के खिलाफ करते हैं कि अगर अवाम को हम लोग असला देंगे तो मुख्तलिफ फसादात और झगड़े हमारे माशरे में जन्म लेंगे। अच्छा जनाब सदर, इसके बाद हमारे पास इनके गवर्नमेंट डिप्टी आते हैं जो कि सबसे पहले तो पर्सनल अटैक करते हैं और कहते हैं कि डिक्लेमेशन का बंदा हमारे पास एनडीएससी कैसे कर रहा है। तो जनाब सदर, मैं बताता चलूं कि हम लोग यहाँ से इंशाल्लाह जीत के जाएंगे। अच्छा जनाब सदर, इन्होंने दूसरा लाइन ऑफ आर्गुमेंट ये पेश किया कि पीपल कैन टेक एक्शन थ्रू गन। हमारे पास जो है असले की बिना पर हमारे पास वो एक्शन लेंगे। तो जनाब सदर, मैं बताता चलूं, असले के साथ साथ ट्रेनिंग भी जरूरी होती है। अगर उस कौम की, उस फर्द की आप मुकम्मल ट्रेनिंग नहीं करोगे तो जब हमारे पास चोर लूटने के लिए आएंगे तो हो सकता है उसको असले का हमारे पास सही इस्तेमाल नहीं आता हो और असले के गलत इस्तेमाल के सबब वो अपने आप को भी कत्ल कर सकता है। और जनाब सदर, अगर उसने का इसको गलत असले का इस्तेमाल सही नहीं आता होगा, उससे ये भी हो सकता है जनाब सदर, अगर उसकी राह में कोई बच्चा आ रहा हो, कोई बूढ़ा आ रहा हो, कोई जवान आ रहा हो, वो उस शख्स को भी कत्ल कर सकता है। क्यों? क्योंकि वजह हमारे पास ये है कि उसको असले का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं आता। तो इस तरीके से इनका दूसरा लाइन ऑफ आर्गुमेंट हम लोग जो है रद्द करते हैं कि पीपल कैन टेक एक्शन थ्रू लाइसेंस।
अच्छा जनाब सदर, हमारे पास इसके बाद इनके गवर्नमेंट विप आते हैं जो कि ये बात कहते हैं कि बिलाल उसामा का कत्ल जो था हमारे लिए वो कत्ल था। तो जनाब सदर, इनके लिए जो 1100 लोग मरे, क्या उनका कत्ल नहीं था? अच्छा जनाब सदर, इसके बाद ये बात करते हैं ग्रेटर गुड की बात करते हैं। इधर हमारे पास जो है सोल्यूशन इमीडिएट भी कहते हैं। मैं बताता हूँ कि ग्रेटर गुड सिर्फ हमारे पास तब हासिल होगा जब कानून और पुलिस मजबूत होगी, ना कि गली गली में गोली चलेगी। जनाब सदर, अगर गली गली में गोलियां चलेगी तो हमारे पास आप असला दे तो देते हो, लेकिन आपके पास एक ऐसा वक्त आएगा कि आपके पास असला लेना मुश्किल हो जाएगा। तो इनकी इस विप की बात को भी मैं जो है मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता हूँ। अच्छा जनाब सदर, हमारे पास जब किसी भी कौम के अंदर असला दे दिया जाता है तो उस मुल्क का बच्चा बच्चा वहाँ के सारे माहौल को देखता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है हमारा माशरा एक बिगाड़ की सूरत हाल इख्तियार कर लेता है। जनाब सदर, इन्होंने पहला जो इनका आर्ग्यूमेंट था वो मुकम्मल तौर पर जो है रद्द किया जाता है कि अगर हम लोग रियासतों को, अगर हम लोग यही बात करें कि अगर रियासतें कमजोर पड़ रही हैं तो उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए। क्योंकि मेरे पहले प्राइम मिनिस्टर ने आके ये बात मुकम्मल तौर पर वादा की थी कि आप जो है जो हमारे पास कानून नाफिज करने के इदारे हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें। अच्छा जनाब सदर, जो हमारे पास दूसरी लाइन ऑफ आर्गुमेंट मेरे डिप्टी ने पेश की वो ये थी कि असला और अमन दोनों हमारे पास मुख्तलिफ चीजें हैं। आप असले और अमन को कभी भी एक साथ नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जनाब सदर, हमारे पास हम लोगों ने माशरे में ये देखा है कि लोग जाती मफाद को फरोग देते हैं, ना कि जाती दिफा को। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा शाहजेब कत्ल केस, जनाब सदर, लोग जो है जाती मफाद को हमारे पास ज्यादा मायने दे रहे हैं, ना कि जाती दिफा को। क्यों? क्योंकि शाहजेब कत्ल केस हमारे पास सामने है, विशाल खान का केस सामने है कि जब उसने फेसबुक के ऊपर अपनी पोस्टें अपलोड की तो गैरत के नाम पे जनाब सदर उसको कत्ल कर दिया गया। जनाब सदर, हम यही बात कह रहे हैं कि हमारे पास असले का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, इस वजह से हम लोग असला अपनी कौम के लोगों को नहीं देंगे। अच्छा जनाब सदर, इसके बाद हमारे पास असले की वजह से ही मुख्तलिफ पास जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के फसादात होते हैं। इसके अलावा जनाब सदर, हमारे पास जो है ऐसे बहुत से केसेस हैं जो कि असले की बिना पर सामने आते हैं, जो कि हमारे मुआशरे को एक बदतरीन सतह पर लाकर खड़ा कर देते हैं। मैं अपने यहाँ पर डिबेट का इख्तिताम इस शेर से करूंगा जो हमारे पास जाती मफादात के लिए यूज होता है। बिलाल नासिर की, अच्छा इन्होंने जो है हमारे पास बिलाल नासिर की मिसाल दी। बिलाल नासिर तब भी शहीद हुआ जबकि इसने मुजम्मत की थी। ठीक है, ये बात याद रखने वाली है कि अगर वो मुजम्मत नहीं करता, अगर वो असला ना दिखाता तो जनाब सदर हमारे पास वो शहीद ना होता, हो सकता है वो हमारे पास बच जाता। ठीक है जनाब सदर, अगर बिलाल नासिर का कत्ल हुआ है तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर खुदा का वास्ता आपको मार दिया जाए तो आपके घर वालों पे क्या बीतेगी, क्या आप उसका अंदाजा कर सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं जनाब सदर, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे कि हमारी वजह से हमारे घर वाले तकलीफ में आए। अच्छा जनाब सदर, हम लोग जो है इसी बात पर मैं अपना इख्तिताम करता हूँ, शक की बिना पर कितने कत्ल होंगे? जनाब सदर, हमारी अच्छा असले का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? हम लोगों को किसी के ऊपर शक हुआ, वो हमारे पास आ रहा है, हो सकता है वो लूटने के लिए आ रहा हो, हम लोगों ने फौरन से असला निकाला और उसको मार दिया। तो जनाब सदर, ये तो कोई इंसाफ भी नहीं होता हमारे पास, ये तो कोई इंसाफ ही नहीं होता। इस वजह से हम लोग जो है असला कभी भी नहीं देंगे। ठीक है, अच्छा जनाब सदर, इसके बाद इन्होंने हम लोग लास्ट में इख्तिताम इस तरीके से करते हैं जो जाती मफादात के लिए होता है। जमीनों के चिरागों की जियाएं बेच देते हैं, ये मरियम माँ और ज़ैनब की रिदाएं बेच देते हैं, किसी की जिंदगी और मौत से मतलब नहीं इनको, ये शहर दर्द में नकली दवाएं बेच देते हैं। मुनासिब काम लग जाए तो माए बेच देते हैं। इसके अलावा इनके जो हमारे पास डिप्टी आए थे वो ये बात कह के गए थे कि हम लोग जीत चुके हैं, आने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये बताता चलूं कि मैकेनिकल में सिर्फ दोशीज़ाएं नहीं बल्कि लड़के भी मौजूद हैं।